السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم سرخیوں پر۔ دفاتر سب رجسٹرار میں ڈاکیومنٹ رائٹرز کا غلبہ، درمیانی آدمی کا رول، رجسٹریشن کروانے کے لیے بھاری رقم کا مطالبہ۔ تلنگانہ میں آکسیجن سے مربوط 10,000 بستروں کا اضافہ، ضروری خدمات کے لیے عہدیداروں کی قیادت میں ٹیموں کی تشکیل، چیف منسٹر کا اقدام، چیف سیکرٹری سومیش کمار کی میٹنگ۔ شہر میں 25 تا 30 کووڈ کیئر مراکز قائم ہوں گے، بلدیہ نے شادی خانوں، تعلیمی اداروں کی نشاندہی مکمل کر لی۔ ریاست میں کورونا معائنوں کی کٹس کی بھی قلت پیدا ہو گئی، حکومت کی ہدایت کے باوجود یومیہ معائنوں کی تعداد میں کمی، RT-PCR معائنے سے گریز۔ سنگاریڈی کورونا متاثرین کو آکسیجن کی فراہمی، رکن اسمبلی سنگاریڈی جگا ریڈی کی مقامی کمپنی کے ذمہ داروں سے ملاقات۔ بلدیات میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کی مہلت میں 31 مئی تک توسیع، حکومت گریٹر حیدرآباد میونسپل کارپوریشن کے حدود میں پراپرٹی ٹیکس کی ادائیگی کے لیے 5% رعایت کی مہلت میں 31 مئی توسیع۔ تلنگانہ ہائی کورٹ نے اپنے تمام عبوری احکامات کی میعاد میں جون کے اختتام تک کر دی توسیع۔ شہر میں خون کی قلت پیدا ہونے کا امکان، نوجوان ویکسین لینے کے لیے تیار، آئندہ 3 ماہ مشکل کے ہوں گے۔ ریاست تلنگانہ میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس کے 5,695 نئے کیسز درج، 49 افراد کی ہوئی موت۔ ساؤتھ سینٹرل ریلوے سے مزید 23 ٹرینیں منسوخ، 2 ٹرین جزوی طور پر منسوخ، مسافروں میں کمی پر فیصلہ، مزدور طبقے کی واپسی کا عمل تیز۔ ناظرین، وقت تو چلا ایک چھوٹے سے بریک کا، بریک کے بعد بھی خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا۔ جرمنٹن ہاسپٹل آرتھوپیڈک سے متعلق ہر مریض یہاں شفا یاب، انعام یافتہ ڈاکٹر میر جواد زار خان، سینئر آرتھوپیڈک سرجن، ایڈوانس آپریشن تھیٹر، ICU، ڈیجیٹل ایکس رے، لیبوریٹری، فیزیو تھراپی، فارمیسی، شیئرنگ اور پرائیویٹ رومز، لیڈی ڈاکٹرز اور ڈاکٹر ارجمن سلطانہ گینیکولوجسٹ کی خدمات حاصل، واجبی فیس اور مکمل سہولیات سے ہزاروں مطمئن، ایمبولینس سے آراستہ جرمنٹن آرتھوپیڈک ہاسپٹل، پلر نمبر 150، عطاپور، حیدرآباد۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ غیر لائسنس یافتہ ڈاکیومنٹ رائٹرز دفاتر سب رجسٹرار میں درمیانی آدمیوں کے طور پر کام کر رہے اور ان دفاتر میں گویا ان کا غلبہ ہے اور وہ کسی سوالات کے بغیر دستاویزات کا رجسٹریشن کرواتے ہیں۔ ظاہر ہے اس میں ان کا مفاد ہوتا ہے۔ دراصل ریاستی حکومت کا ان غیر لائسنس یافتہ ڈاکیومنٹ رائٹرز پر کوئی کنٹرول نہیں ہے۔ کورونا وبا سے پہلے یہ رنگا ریڈی ڈسٹرکٹ میں یاچارام کے مدھوکر ریڈی نے ایک ریئل اسٹیٹ وینچر میں 300 مربع گز کا پلاٹ خریدا۔ جائیداد کی گورنمنٹ ویلیویشن کے مطابق رجسٹریشن فیس 1,20,000 روپے مقرر تھی۔ اس پلاٹ کا رجسٹریشن کروانے کے لیے انہوں نے 8,800 روپے سٹیمپ ڈیوٹی، ٹرانسفر ڈیوٹی، رجسٹریشن فیس اور یوزر چارجز کے لیے ادا کیے، اور ڈاکیومنٹ رائٹر سے یہ کام کروانے کے لیے کوئی رشوت کا مطالبہ نہیں کرتے تھے۔ تاہم کووڈ کے بعد وہ رجسٹریشن کروائی جانے والی جائیداد کی قدر کا کچھ فیصد ان کی فیس کے طور پر طلب کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ دفاتر سب رجسٹرار میں انہیں بعض لوگوں اس کام کے سلسلے میں رقم دینی پڑتی ہے۔ ڈاکیومنٹ رائٹر کو بطور رشوت 4,000 روپے ادا کیے۔ یہ رقم دستاویز کی تیاری اور سب رجسٹرار آفس میں کسی تاخیر اور مسائل کے بغیر کام کروانے کے لیے ادا کی گئی۔ اگر انہیں مطلوبہ رقم ادا نہیں کی گئی تو رجسٹریشن میں کسی نہ کسی مسئلے کی وجہ سے تاخیر ہوگی۔ بعض اوقات رجسٹریشن کا عمل رک بھی جائے گا۔ یہ الزامات بھی ہیں کہ اس میں سب رجسٹرار آفس کا سٹاف ملوث ہوتا ہے۔ سب رجسٹرار آفس میں دستاویز کا رجسٹریشن کیا جاتا ہے، جبکہ ماباقی 90% کام ڈاکیومنٹ رائٹر کے آفس میں ہوتا ہے، جو سب رجسٹرار آفس کے قریب ہوتا ہے۔ ڈاکیومنٹ رائٹر سب رجسٹرار آفس میں داخل ہوتا ہے تو ہر کام جلد ہو جاتا ہے۔ حالانکہ سب رجسٹرار کے دفتر میں سوائے خریدار، فروخت کنندہ اور گواہوں کے کسی باہر کے افراد کو آنے کی اجازت نہیں دی جانی چاہیے، لیکن سب رجسٹرار آفس میں درمیانی آدمیوں کی سرگرمیاں دفتر کے سٹاف کے مقابل زیادہ ہوتی ہیں۔
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने वजारत सेहत का कलमदान संभालते ही कोरोना की सूरत हाल के सिलसिले में चीफ सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदारों के साथ जायजा इजलासों और जरूरी हिदायत का आगाज कर दिया है। बताया जाता है कि चीफ मिनिस्टर चंद घंटों में वक्फे से चीफ सेक्रेटरी और महकमे सेहत के ओहदेदारों से राब्ता कायम करते हुए दवाखानों में ऑक्सीजन की सरबराही और इलाज की सहूलतों के बारे में मालूमात हासिल कर रहे। इसी दौरान चीफ मिनिस्टर की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने सीनियर ओहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया, जिसमें सरकारी दवाखानों के मजीद 10,000 बिस्तरों को ऑक्सीजन से मरबूत करने का फैसला किया गया। इस तरह सरकारी दवाखानों में ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद 20,000 हो चुकी है। गुज़िश्ता साल सितंबर में रियासत में सरकारी और खानगी शोबे के तहत 18,232 कोरोना बिस्तर थे। ये तादाद में 49,133 तक इजाफा किया गया। हुकूमत की जानिब से ऑक्सीजन से मरबूत बिस्तरों की तादाद 60,000 करने के इक़दामात जारी हैं। शहर में कोरोना मरीजों के लिए करंतना और ऑक्सीजन बिस्तरों की सहूलतों के लिए मजलिस बल्दिया अजीमतर हैदराबाद ने स्कूलों और कॉलेजेस के अलावा शादी खानों की निशानदही का अमल मुकम्मल कर लिया। दोनों शहरों के अलावा बल्दी हुदूद में 25 ता 30 करंतना मराकज के क़याम के सिलसिले में इक़दाम किए जा रहे। कहा जा रहा है कि JHMC की जानिब से स्कूलों और कॉलेजेस के अलावा शादी खानों की निशानदही के जरिए अवाम को सहूलत के इक़दाम किए जाएंगे। करंतना और कोविड केयर मराकज को गैर सरकारी तंजीमों और डॉक्टर्स की निगरानी में चलाया जाएगा। इस सिलसिले में महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि इन मराकज के लिए जगह की निशानदही के बाद महकमे सेहत के ओहदेदार और जिले कलेक्टर, जो कि जिले नोडल ऑफिसर भी हैं, उन मुकामात का मुआयना करके इजाजत फराहम की जाएगी। ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत की हिदायत के मुताबिक शहर को मुख्तलिफ अजला से मरीज पहुँच रहे और उनको फौरी ऑक्सीजन की सहूलत के अलावा दीगर तिब्बी सहूलतों की फराहमी को मुमकिन बनाने दवाखानों के अलावा दीगर सहूलतों की जरूरत महसूस की जा रही थी और हुकूमत ने हिदायत जारी की कि बल्दिया हुदूद में 25 ता 35 करंतना मराकज का क़याम अमल में लाया जाए और उनमें ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। ओहदेदारों ने बताया कि आइंदा हफ्ते तक गैर सरकारी तंजीमों के जिम्मेदारों से बातचीत और तिब्बी व नीम तिब्बी अमले के साथ मुज़ाकरात और तैनाती के जरिए खिदमात के आगाज की हिकमत अमली तैयार की गई है। तेलंगाना में कोरोना मुआयनों की तादाद में कमी के सिलसिले में तहकीक पर इंकशाफ हुआ कि कई अजला में मुआयनों की किट्स की शदीद किल्लत है, जिसके सबब यौमिया 60 ता 70 हजार मुआयने किए जा रहे हैं, जबकि हुकूमत की जानिब से कायम किए गए मराकज पर अवाम की तवील कतारें देखी जा रही और मुख्तलिफ अलामात का शिकार मरीज कोरोना वायरस का मुआयना करवाने पहुँच रहे, लेकिन उनके मुआयनों को यकीनी नहीं बनाया जा रहा। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने अवाम से अपील भी की है कि वो बगैर किसी अलामात के कोरोना मुआयने से गुरेज करें। रियासत में किट्स की किल्लत के सबब पैदा शुदा सूरत हाल के मुतालिक बताया जा रहा है कि अजला में कोरोना मुआयनों में कमी की वजह से रियासत में गुज़िश्ता 3-4 यौम से 7,000 या इससे ज्यादा मरीजों की निशानदही हो रही। हुकूमत की जानिब से वसी पैमाने पर कोरोना मुआयनों के ऐलान किए जा रहे, लेकिन किट्स की किल्लत की वजह से अगर किसी को रैपिड एंटीजन मुआयने में कोरोना की तौसीक होती है तो इसका RT-PCR मुआयना नहीं किया जा रहा और रैपिड एंटीजन के नतीजे की बुनियाद पर मरीज को कोरोना पॉजिटिव करार दिया जा रहा, जबकि अगर मरीज RT-PCR खान के तौर पर करवाता है तो कई मरतबा उसे रैपिड के नतीजे के मुखालिफ नतीजे को देखकर हैरत होने लगी है। महकमे सेहत के ओहदेदारों ने बताया कि हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक रियासत में रैपिड एंटीजन मुआयनों में मुस्बित मरीजों के RT-PCR नहीं किए जा रहे ताकि ज्यादा लोगों के मुआयनों को यकीनी बनाया जा सके, लेकिन किट्स की किल्लत से मुसलसल वाकिफ करवाए जाने के बावजूद इसको दूर करने की कोई इक़दाम नहीं किए जा रहे, जो शहरियों की जिंदगी से खिलवाड़ के मुतरादिफ है। कांग्रेस रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने कोरोना की केसेस में इजाफे के पेश नजर अपने हल्के इंतखाब संगारेड्डी की आवाम को ऑक्सीजन की फराहमी के लिए इक़दाम किए। उन्होंने लक्ष्मी वेंकटेश्वरा एंटरप्राइजेस इंडस्ट्रियल गैस सप्लाई कंपनी का दौरा करते हुए जिम्मेदारों से मुलाकात की। संगारेड्डी असम्बली हल्के के अवाम की ऑक्सीजन की जरूरियात की तकमील के लिए उन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर वेंकटेश्वर राव और कंपनी के जिम्मेदार अभिनव से बातचीत की। जग्गा रेड्डी ने कहा कि संगारेड्डी में कोरोना से मुतासर अफराद को गैस की सरबराही में अवलीन तरजीह दी जाए। जिले कलेक्टर हेमंत राव, ज्वाइंट कलेक्टर राजेश से भी जग्गा रेड्डी ने इस मसले पर बातचीत की। उन्होंने एक और खानगी इंडस्ट्री के जरिए गैस हासिल करने का तयक़ुन दिया ताकि संगारेड्डी के अवाम की जरूरियात की तकमील हो सके।
हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए 5% रियायत की मोहलत में 31 मई तक तौसीक कर दी है। प्रिंसिपल सेक्रेटरी बल्दी नज़्म व नस्क अरविंद कुमार ने GORT 342 जारी किया, जिसके तहत कोरोना की मौजूदा सूरत हाल के पेश नजर मालियाती साल 2021-22 के लिए रियासत के तमाम शहरी मजालिस मुकामी बशमुल ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में अर्ली बड्डा स्कीम के तहत प्रॉपर्टी टैक्स अदा करने वालों को 5% की रियायत में 31 मई तक तौसी का फैसला किया है। कमिश्नर JHMC और डायरेक्टर म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन को अमल आवारी के लिए जरूरी इक़दामात की हिदायत दी गई। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने तमाम उबूरी अहकामात की मियाद में जून के इख्तिताम तक तौसी कर दी है। चीफ जस्टिस हेमा कौली, जस्टिस MS रामचंद्र राव और जस्टिस A राजशेखर रेड्डी पर मुश्तमिल मुकम्मल बेंच ने स्टेट बार काउंसिल की एक सदनशीन A नरसिम्हा रेड्डी की दरख्वास्त पर यह फैसला किया। कोरोना के पेश नजर अवाम की अदालतों से रुजू होने में रुकावट को देखते हुए यह फैसला किया गया। इन अहकामात पर जिले अदालतों में भी अमल आवारी होगी। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। लड़कियों और खवातीन की पहली पसंद कच्ची शॉप, मेट्रो पिलर नंबर B1192, लेफ्ट साइड, बड़ी चौड़ी, अपोजिट सुल्तान बाजार पुलिस स्टेशन, हैदराबाद। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर LV प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, कन्वर्जन लैंड, 100% वास्तु, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, क्लियर टाइटल, 10 ईयर सिक्योरिटी, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 98481 187780, 63037 10882। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। कोविड-19 वबा ही कुछ कम फिक्र वाली नहीं है, जबकि खून की किल्लत दवाखानों और मरीजों के लिए बड़ी तशवीश की बात बन गई है, जो जिंदगी और मौत की कशमकश में मुब्तला हैं। आने वाले महीनों में खून की तलब में इजाफा मुतवक्के है, जबकि खून का अतिया देने वालों की तादाद में बहुत कमी होगी। शहर हैदराबाद में एक साल में तकरीबन 2.5 लाख यूनिट्स खून की जरूरत होती है, लेकिन ये तलब दुगनी हो सकती है क्योंकि ज्यादा से ज्यादा कोविड मरीज जल्द सेहतयाबी के लिए प्लाज्मा थेरेपी पर इन्हिसार कर रहे। इसके अलावा थैलेसीमिया, एनीमिया के मरीजों और सड़क हादसात में जख्मी होने वालों को भी खून देने की जरूरत होती है। ब्लड डोनेशन ऑर्गेनाइजेशन और ब्लड बैंक्स की जानिब से आवाम से दरख्वास्त की जा रही कि वो वैक्सीन लगाने से कबल खून का अतिया दें, क्योंकि वो पहले और दूसरे टीके के बाद कम से कम 3 महीनों तक खून का अतिया नहीं दे सकते। मौजूदा हालत के बारे में बताते हुए हैदराबाद ब्लड डोनर सोसाइटी के P सरोजन ने कहा है कि हमको औसतन हर रोज खून की फराहमी के लिए कम से कम 50 कॉल्स वसूल हो रहे हैं और खून की तलब में बहुत ज्यादा इजाफा हो गया है और हम सिर्फ निस्फ तलब को पूरा कर सकते हैं। अक़लियती क़ामती स्कूल सोसाइटी के स्कूलों और जूनियर कॉलेजेस में दाखिलों के अमल को आसान और शफाफ बनाने के लिए सोसाइटी ने मोबाइल एप्लीकेशन मुतारिफ किया है, जिसका मकसद कोविड के पेश नज़र तलबा और औलियाए तलबा को दाखिलों के लिए स्कूलों और कॉलेजेस में जमा होने से बचाना है। सेक्रेटरी अक़ामती स्कूल सोसाइटी B शफीउल्लाह ने बताया कि इस मरतबा स्कूल्स और कॉलेजेस में दाखिलों के लिए एंट्रेंस टेस्ट के बजाय ड्रॉ सिस्टम को इख्तियार करने का फैसला किया गया। तलबा को 5वीं जमात और इंटर फर्स्ट ईयर में दाखिले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त की सहूलत फराहम की गई है। इसके अलावा 6वीं ता 9वीं जमात के मखलूआ निशस्तों पर भी दाखिले दिए जाएंगे। B शफीउल्लाह ने बताया कि अहले उम्मीदवार टिमरीज ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और टिमरीज की वेबसाइट के जरिए भी दाखिला फॉर्म पूरे किए जा सकते हैं। वेबसाइट www.timriz.telangana.government.in पर दरख्वास्तों के ऑनलाइन अदखाल का आगाज हो चुका है। दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख
20 मई मुकर्रर की गई है। उन्होंने बताया कि मुतल्लिका स्कूलों में ड्रॉ की बुनियाद पर उम्मीदवारों का इंतखाब होगा, जबकि इंटर फर्स्ट ईयर के लिए जूनियर को सिलेक्शन कमेटी की निगरानी में ड्रॉ का एहतमाम किया जाएगा। दाखिलों में रूरल ऑफ रिजर्वेशन पर अमलावरी की जाएगी। दाखिलों के बाद अगर निशस्तें खाली रह जाती हैं तो अहले उम्मीदवारों से दोबारा दरख्वास्तें तलब की जाएंगी। 118 जूनियर कॉलेजेस ये साल हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके अलावा 204 स्कूल्स में भी एडमिशन्स चालू होएगा। इसका लास्ट डेट है 20 मई है। इसके बाद में ये साल कोविड की वजह से एंट्रेंस टेस्ट हम कंडक्ट नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा हम एक मोबाइल ऐप भी हम डेवलप कर रहे हैं। मोबाइल ऐप में डायरेक्टली गूगल पे में हम डाउनलोड कर सकते हैं। टेमरिस डाउनलोड करके डायरेक्ट ऑनलाइन एप्लीकेशंस मोबाइल से दरखास्त दे सकते हैं। रियासत में कोरोना के केसेस में मुसलसल इजाफे को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने अवाम में बचाव इक़दामात के सिलसिले में शोरबेदारी का फैसला किया है। ऑल कांग्रेस कमेटी की हिदायत पर तमाम प्रदेश कांग्रेस कमेटियों ने अपनी अपनी रियासतों में अवाम में मास्क की तकसीम का अमल शुरू किया है। सदर प्रदेश कांग्रेस उत्तम कुमार रेड्डी की अपील पर तेलंगाना के तमाम अजला में जिले कांग्रेस कमेटियों और सिटी कांग्रेस कमेटियों की जानिब से अवाम में मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही। हैदराबाद की नामपल्ली असेंबली हल्के में और सिकंदराबाद के मुशीराबाद में भी सीनियर लीडरों की जानिब से मुस्तहिक अफराद में मास्क की तकसीम अमल में लाई जा रही और उन्होंने अवाम से अपील भी की है कि वो कोरोना वबा से बचाव के लिए तमाम तर एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। उनमें मास्क के इस्तेमाल को लाजमी कर लें, क्योंकि डॉक्टर्स ने मास्क के जरिए वबा से बचाव का मशवरा दिया है। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने वजीर सेहत इटाला राजेंद्र को काबीना से भी बरतरफ कर दिया है। इस सिलसिले में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की सिफारिश को गवर्नर ने कबूल करते हुए फौरी असर के साथ राजेंद्र को काबीना से बरतरफ करने के अहकाम जारी किए। वजीर सेहत वजीर इटाला राजेंद्र के खिलाफ 2 दिन कबल जमीन के कब्जे की सनसनीखेज इल्जामात सामने आए थे। मेदक जिले के किसानों ने राजेंद्र पर जमीन कब्जे का इल्जाम आयद किया था कि उनकी जमीनों को मेदक जिले के मोटाईपेट मंडल में इटाला राजेंद्र ने कहा। उन्होंने बताया कि अचनपेट और हकीमपेट में ये कब्जा हुआ है। वजीर सेहत इटाला राजेंद्र के अराजी कब्जे के मामले को किसानों ने चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव को मकतूब रवाना करते हुए राजेंद्र के खिलाफ शिकायत की थी। मेदक के एडिशनल कलेक्टर नागेश ने बताया कि जमुना हैचरेस प्रोजेक्ट के बाजू 25 एकड़ अराजी है। इटाला ने वो 25 एकड़ अराजी देने के लिए राब्ता किया। मैं खुद फील्ड लेवल पर गया और चेक किया। मैंने कहा कि क़वानीन के बरखिलाफ खानगी अफराद को तफवीज़ शुदा जमीन देना गैर कानूनी है। ये जमीन फिलहाल वजीर के ज़र कंट्रोल है। हकीकत में ये जमीन कमजोर तबकात की है। मैंने वजीर को बताया कि मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। इसके बावजूद वजीर मौसूफ इस जमीन को हवाले करने के लिए कई बार दबाव डाले थे। मुतासरा किसानों का कहना है कि मकबूजा अराजी पर हैचरेस कंपनी के शेड्यूल के तामीर जारी है। जब उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कहा कि उन्हें धमकी दी गई कि उनकी जमीन तक रसाई से इनकार कर दिया जाएगा। अराजी की दस्तावेजात भी जबरदस्ती छीन ली गई और किसानों ने बताया कि वजीर ने पहले ही 100 एकड़ अराजी पर कब्जा कर लिया, जिसमें से 10 एकड़ पर इटाला के खानदान के नाम दर्ज की गई थी। तहकीकात के दौरान इस बात का पता चला कि राजेंद्र ने अराजी पर कब्जा किया है, जिसके बाद उन्हें काबीना से बरतरफ कर दिया। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,695 नए केसेस दर्ज हुए हैं, जिसके बाद रियासत में अब तक की कुल तादाद 4,56,485 हो गई। इसी तरह 24 घंटों के दौरान 49 अफराद की मौत वाक़ई हो गई, जिसके बाद मरने वालों की कुल तादाद 2,417 हो गई। आदिलाबाद में 56 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। वहीं भद्रादरी कोत्तागुड़म में 108, जीएचएमसी में 1,352, जगतियाल में 190, जनगांव में 37, जयशंकर भोपालपल्ली में 39, जोगुलांबा गढ़वाल में 58, कामारेड्डी में 40, करीमनगर में 231, खम्मम में 121, कुमरम भीम आसिफाबाद में 41, महबूब नगर में 221, महबूबाबाद में 119, मंचरियाल में 165, मेदक में 59, मिर्चल मलकाजगिरी में 427, मुलगू में 21, नागर कर्नूल में 132, नलगुंडा में 52, नारायणपेट में 28, निर्मल में 34, निजामाबाद में
258, पेद्दापल्ली में 99, राजन्ना सिरसिला में 79, रंगारेड्डी में 483, संगारेड्डी में 249, सिद्दीपेट में 238, सूर्यापेट में 42, विकाराबाद में 109, वनपर्ती में 101, वरंगल रूरल में 67, वरंगल अर्बन में 393 और यदाद्री भोंगिर में 46 कोरोना वायरस के केसेस दर्ज हुए हैं। घबराएं नहीं, हिम्मत से बढ़कर कोई दवाई नहीं है। करीमनगर के रुकने पार्लियामेंट और बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय कुमार ने कोविड की हालत के बारे में जिले कलेक्टर शशांक से तबादला ख्याल किया। रुकने पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने कोरोना सूरत हाल के बारे में गैर जरूरी अफवाहों से घबराने से मना किया। मेंबर पार्लियामेंट बंडी संजय कुमार ने जिले कलेक्टर शशांक से जिले की कोविड की सूरत हाल पर जिले कलेक्टर को हिदायत की कि वो जिले करीमनगर के आसपास के इलाकों से बड़ी तादाद में जिले मराकज आने वाले कोरोना मुतासरीन के लिए मुनासिब इंतजाम करे। सरकारी और निजी अस्पतालों में मुतासरा कोरोना मरीजों के लिए बेहतर सहूलतें फराहम करें और ऑक्सीजन, इलाज, मुआलजे और दीगर मंशियात की कमी नहीं होनी चाहिए। मरकजी हुकूमत कोविड के मामले में हर तरह की मदद फराहम करने के लिए तैयार है। जिले इंतजामिया और महकमे सेहत को मुनासिब मंसूबे तैयार करने का मशवरा दिया गया। उन्होंने कहा कि अगर उनके दायरे में आने वाले उमूर को ध्यान में लाया गया तो वो इस मसले के हल के लिए काम करेंगे। उन्होंने कोरोना अलामात से मुतासरा हर फर्द को महकमे सेहत और डॉक्टरों के मशवरे पर अमल करने की अपील की। घर में तन्हाई, अस्पताल में कोरोना से बचा जा सकता है। रुकने पार्लियामेंट ने मशवरा दिया कि मुतासर अफराद में कोरोना बीमारी को फतेह करने का हौसला और अज़्म होना चाहिए। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुरकशिश शख्सियत के लिए लिबास और बेहतरीन लिबास के लिए सिर्फ और सिर्फ नूरानी लिबास, ए कंप्लीट वेडिंग एंड पार्टी वेयर कलेक्शन। शादी ब्याह हो या ईद की शॉपिंग हो या दीगर तकारीब, तो आपके बेहतरीन पसंद नूरानी लिबास, शेरवानी, सदरी, कुर्ता पैजामा, पठानी सूट्स, डेनिम कुर्ता पैजामा, अरबिक तोप, मेंस एंड किड्स वियर, टेक्सटाइल्स एंड रेडीमेड स्टिचिंग। हमारे यहाँ डिजाइन ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। एड्रेस एडम्स कॉलोनी, टूली चौकी, अवर ब्रांच पोडियम मॉल, टूली चौकी एंड मलिकपेट, हैदराबाद। रियल एस्टेट की दुनिया में पहली बार डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स की फखरिया पेशकश। 100 स्क्वायर यार्ड्स की खरीदारी पर रजिस्ट्री मुफ्त पाएं। ये पेशकश महदूद है। जेपी डायमंड हिल्स फेज 1 की शानदार कामयाबी के बाद डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स के चेयरमैन हाफिज मोहम्मद जाफर की एक और मायनाज पेशकश। फेज 2 और फेज 3 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट 4 लाख और 5 लाख में दस्तयाब है। जहांगीर पीर दरगाह के दामन में मुकाबिल रिहाइश आबादी से मुतस्सिल इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, बीटी रोड्स, पार्क, फुटपाथ, आरटीसी बस, शजरकारी और मस्जिद की सहूलियत के साथ ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट, क्लियर टाइटल, स्पॉट रजिस्ट्रेशन, गेटेड कम्युनिटी, कुथूर मंडल, शमशाबाद एयरपोर्ट से महज 25 मिनट की दूरी पर। बुकिंग जारी है। जल्द अज जल्द रब्त पैदा करें। डायमंड कंस्ट्रक्शंस एंड डेवलपर्स, मीर आलम टैंक, अंसारी रोड। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के मुकाम नारायण खेड़ में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर बल्दी हुकाम ने 3 मई से 10 मई तक एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन लगा दिया है। तरकारी, अद्वियात और मेवे की दुकानात 11 बजे दिन तक खुली रहेंगी। 4 मई और 11 मई के हफ्तेवार प्रोग्राम मनसूख कर दिए गए हैं। बीजेपी के सीनियर लीडर जी नारायण रेड्डी ने मरकजी हुकूमत पर जोर दिया कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल लिमिटेड के सरबराह डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला को भारत रत्न एजाज से नवाजा जाए, जिन्होंने कोरोना से बचाव के लिए कोवैक्सीन इजाद की है। नारायण रेड्डी ने कहा है कि कोवैक्सीन पहली वैक्सीन है जो कोरोना वबा से बचाव में अहम रोल अदा कर सकती है। ये पहली वैक्सीन थी जो मुल्क में तैयार की गई, जिसके नतीजे में न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि दुनिया भर में करोड़ों इंसानों की जान बचाई जा सकी। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक इंटरनेशनल ने डॉक्टर कृष्णा एम इल्ला की क़ियादत में इंतहाई कम वक्त में वैक्सीन की तैयारी का कारनामा अंजाम दिया। वैक्सीन कोरोना से बचाव के लिए इंतहाई मौसर साबित हुई है। व्हाइट हाउस के चीफ मेडिकल ऑफिसर और अमेरिका में वबाओं पर महारत रखने वाले डॉक्टर एंटोनी ने भी इसकी सताइश की। उन्होंने कहा कि कोवैक्सीन के नताइज कोविशील्ड से बेहतर हैं। डॉक्टर कृष्णा इल्ला ने कोविड वैक्सीन पर रिसर्च के सिलसिले में साइंसदानों की क़ियादत की और एक मौसर वैक्सीन इजाद की। उन्होंने मरकज पर जोर दिया कि वो डॉक्टर इल्ला को भारत रत्न एजाज से नवाजे।
हुकूमत कोरोना वबा के फैलने की वजह से तिब्बी ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए मौजूदा नाइट्रोजन प्लांटों को ऑक्सीजन प्लांटों में तब्दील करने की फिजिबिलिटी को तलाश कर रही वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए मीटिंग करके नाइट्रोजन प्लांटों को ऑक्सीजन प्लांट में तब्दील करने के पेशरफ्त का जायजा लिया। इजलास में ये जानकारी दी गई कि ऐसे मुख्तलिफ मुमकिना सनतों की निशानदेही की गई है जिसमें मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट्स को ऑक्सीजन की तैयारी के लिए तब्दील किया जा सकता है। ऑक्सीजन तैयार करने के लिए मौजूदा प्रेशर स्विंग एडसॉर्प्शन नाइट्रोजन प्लांट्स को तब्दील करने के अमल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। नाइट्रोजन प्लांट्स में कार्बन मॉलिक्यूलर सेव का इस्तेमाल किया जाता है जबकि ऑक्सीजन की पैदावार के लिए जेओलाइट मॉलिक्यूलर सेवन की जरूरत होती है। लिहाजा मौजूदा नाइट्रोजन प्लांट्स में ऑक्सीजन पैदा करने के लिए CMS को ZMS और कुछ दूसरी तब्दीलियों जैसे ऑक्सीजन एनालाइज कंट्रोल पैनल सिस्टम फ्लू वॉल्व्स वगैरह से तब्दील किया जा सकता है। आखिर में फिर एक बार नजर सुर्खियों पर। दफातर सब रजिस्ट्रार में डॉक्यूमेंट राइटर्स का गलबा, दरमियानी आदमी का रोल, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए भारी रकम का मुतालबा। तेलंगाना में ऑक्सीजन से मरबूत 10,000 बिस्तरों का इजाफा, जरूरी खिदमात के लिए ओहदेदारों की क़ियादत में टीमों की तश्कील, चीफ मिनिस्टर का इक़दाम, चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार की मीटिंग। शहर में 25 ता 30 कोविड केयर मराकज कायम होंगे। बल्दिया ने शादी खानों तालीमी इदारों की निशानदही मुकम्मल कर ली। रियासत में कोरोना मुआयनों की किट्स की भी किल्लत पैदा हो गई। हुकूमत की हिदायत के बावजूद यौमिया मुआयनों की तादाद में कमी, RT-PCR मुआयने से ग्रेस। संगारेड्डी कोरोना मुतासरीन को ऑक्सीजन की फराहमी, रुकन असम्बली संगारेड्डी जग्गारेड्डी की मुकामी कंपनी के जिम्मेदारों से मुलाकात। बल्दियात में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी की मोहलत में 31 मई तक तोसी। हुकूमत ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के हुदूद में प्रॉपर्टी टैक्स की अदायगी के लिए 5% रियायत की मोहलत में 31 मई तोसी। तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने तमाम अबूरी अहकामात की मियाद में जून के इख्तिताम तक कर दी तोसी। शहर में खून की किल्लत पैदा होने का इम्कान, नौजवान वैक्सीन लेने के लिए तैयार, आइंदा 3 माह मुश्किल के होंगे। रियासत तेलंगाना में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 5,695 नए केसेस दर्ज, 49 अफराद की हुई मौत। साउथ सेंट्रल रेलवे से मजीद 23 ट्रेनें मनसूख, 2 ट्रेन जुज़वी तौर पर मनसूख, मुसाफिरों में कमी पर फैसला, मजदूर तबके की वापसी का अमल तेज। इसी के साथ खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।